تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. وقال تعالى فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الصادق الأمين الكريم. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز علماء کرام، قوم کی رہبری کرنے والے دوستو، خدمت کا جذبہ رکھنے والے نوجوانوں، آج قمری کون سی تاریخ ہے؟ قمری کون سی تاریخ ہے؟ 12. اوپر دیکھ رہے ہیں نا؟ اچھا، چلو اتنا بھی ہے، بہتر ہے. اسے کہتے ہیں قمری تاریخ. کیا کہیں گے؟ قمری تاریخ. اور آج ایک تاریخ ہے 23. اس تاریخ کو کیا کہیں گے؟ انگریزی؟ انگلش؟ نہیں، اس تاریخ کو کہیں گے شمسی. کیا کہیں گے؟ آج سے یہ نام نکال دو. انگریزی تاریخ انگریزوں نے تھوڑی بنائی. یہ تاریخ کس نے بنائی؟ ہم اس کا جواب قرآن سے ہی دے دیتے ہیں. جواب سن لو تو اس کے بعد ایک بار سبحان اللہ کہہ دینا. کہو گے انشاءاللہ؟ وَجَعَلْنَا الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا. اللہ فرماتے ہم نے سورج کو بنایا، چاند کو بنایا روشنی. وَجَعَلْنَا الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ. اس کے راستے طے کر دیے. سردیوں میں ایٹھانو والے، سردیوں میں نیچے سے چلتا ہے، گرمیوں میں اوپر سے. کبھی یوں چاند چلا جاتا ہے، کبھی یوں آ جاتا ہے. اللہ نے یہ راستے طے کر رکھے. لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ. تاکہ تم اپنے کام کاج کی تاریخ ڈیٹ فکس کر سکو. تاریخ ڈیٹ فکس کرنے کے لیے اللہ ہی نے سورج کی بھی تاریخ اور قمری بھی تاریخ، شمسی اور قمری دونوں کس نے بنائی؟ کہاں لکھی؟ کہو سبحان اللہ. اس لیے اب سے یہ باہر ہے نا، انگریزی اور انگلش نہیں بولیں گے. آج تاریخ ہے 12 قمری یعنی شعبان. تو کل کون سی ہوگی؟ 13 شعبان. آج شام کی جو رات ہے وہ کس تاریخ کی رات ہوگی قمری میں؟ 13 شروع ہو جائے گی نا مغرب سے. اور کل شام کو کون سی شروع ہو جائے گی؟ 14. اور اتوار کی شام کو کون سی رات ہوگی؟ اس رات کا کیا نام ہے؟ شب برات. گزشتہ جمعہ میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کیا تھا کہ اس کے اندر زیادتی، شب برات کی فضیلت 17 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے روایت ہے.
शब बारात की फजीलत 1400 साल से उलमाए किराम, मुहद्दिसीन, फुक़हा लिख रहे हैं। इस पर मुस्तकिल किताबें और छोटे छोटे किताबचे, रिसाले भी लिखे गए। और इस दौर में तो ऐसी रात को गनीमत समझना चाहिए। जैसा मैंने गुज़िश्ता जुमा में एक जुमला कहा था, लोक अदालत, कि आम रहमत का ऐलान जब हो और आदमी अगर महरूम हो जाए तो इससे बड़ी क्या आदमी की महरूमी होगी। और अल्लाह तो वो करीम अल्लाह है, अल्लाह तो वो करीम अल्लाह है जिसने कुरान में एक ऐसा ऐलान किया, ऐसा ऐलान कि जिसने सारे बड़े से बड़े गुनहगारों को अपनी रहमत के अंदर समो लिया। अगर हम अल्लाह का कलाम काश के समझ जाएं, अल्लाह ने अपने कलाम मजीद में बड़े बड़े गुनहगारों को अपनी तरफ बुलाया है, अपना कहा है। उस गुनाह से तो अल्हम्दुलिल्लाह मोमिन बचा ही रहता है। इसके अलावा गुनाह करके बहुत सी बार ऐसा होता है, शैतान गुनाह करवाता है, फिर कहता है अब तेरी माफी नहीं, तू तो मौलवी साहब से दुआ करा, मौलाना मोला दुआ करी जा, हजरत आए दुआ करी जा। वो अल्लाह तो वो हैं। अबू दाऊद शरीफ की रिवायत है, साहबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन ने मेरे आपके नबी, रहमत वाले नबी, इमामुल मुरसलीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या नबी अल्लाह, आप तो अल्लाह के वो रसूल हैं कि सारे नबियों ने, सुनिएगा, सारे नबियों ने अल्लाह की सिफात के जलवे किए हैं। सारे नबियों ने अल्लाह की सिफात के जलवे देखे हैं। चाहे मूसा कलीमुल्लाह हो, आदम सफीउल्लाह हो, इब्राहिम खलीलुल्लाह हो, सारे नबी रसूलों ने अल्लाह की सिफात के जलवे देखे हैं। मेरे मुस्तफा ने अल्लाह की जात के जलवे देखे कि ए नबी अल्लाह, आप तो अल्लाह के जलवे देखने वाले नबी हैं, अल्लाह के करीब है। काब कौसैन का शर्फ आपको मिला है, आपको मेराज मिली है, रब्बे करीम का आपने दीदार किया है। वो आपके तसल्ली के लिए जिब्रील को उतारता है, वो आपको तसल्ली देने के लिए अर्श में बुलाता है। आप तो बड़े हैं, अल्लाह बड़ा है, आप तो अल्लाह से मिल सकते हैं, हम गुनहगार हैं, हम आम उम्मत है, हम रब से कहाँ मिलें। रब ने जवाब दिया, हदीस कुदसी है, क़ाल अल्लाह ताला अना इंद मुनकसिरतिल क़ुलूब, जो गुनाह करते करते टूट चुके हैं मैं उन दिलों में रहता हूं, बसता हूं। अल्लाह तो हारे हुए मुसलमान के आने का मुंतजिर है। अल्लाह तो इंतजार में है, रात आए, दिन आए, सुबह आए, शाम आए, मस्जिद में आए, जंगल में आए, सजदा करे न करे, मुझे दिल से पुकारे ना। अगर मूसा अलैहिस्सलाम की मजलिस में एक बंदा न हाथ उठाता है, न आंसू बहाता है, ना उसके चेहरे के तासुरात बदलते हैं, एक्सप्रेशन चेंज होते हैं, कुछ भी तो नहीं है, अंदर ही अंदर में रब जाने बंदा जाने, अगर उम्मत मूसा के अल्लाह ताला इस तरह की तौबा कबूल करता है तो मैं और आप तो काली कमली वाले की उम्मती। ये रात आती इसलिए है, आम रहमत यूं आती है कि हमारे गुनाह बख्शवा दिए जाए। और रातों के बारे में क्या अल्लाह ने कहा, वल्लज़ीन यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। दिन के बारे में तो अलग इबादत है, यज़कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन, कि ये दिन के अंदर तो आदमी चलते फिरते उठते बैठते जिक्र अज़कार करता है, लेकिन रात की इबादत अजीब है। यबीतून, बात यबीतू का माना रात गुजारना, रात को अच्छी बनाना, रात जागना। वल्लज़ीन यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, अल्लाह के सामने सर निगू होते हैं, पेशानी झुकाते हैं, आजिज़ी व इंकिसारी का, गुनाहों का एतराफ का, अल्लाह के सामने सबूत देते हैं। अल्लाह फरमाते ये मेरे बंदे हैं। मांगना क्या है शब बारात में? मांगो वो जो अल्लाह सिखाए,
मांगो वो जो। अगर मैं अरबी में सिखाऊं ना, अरबी की दुआएं बतलाने जाओ तो मामला वो होगा। वो एक मौलवी साहब ने जुमा में बयान किया, एक बार मैंने पहले सुनाया था कि रोजे की नीयत क्या है, तो नवैतु व नसूमा गदन लिल्लाहि ताला मिन फर्ज रमजान हाजा 2-3 बार पढ़ दी। बेचारे का जहन याददाश्त कमजोर थी, याद नहीं हुआ। दूसरे दिन मौलवी साहब के जो दोस्त थे ना, उन्होंने रोजा नहीं रखा। मौलवी साहब मदरसा पढ़ा के निकले तो देखा तो हजरत वाला जो है वो तो सिगरेट के चस्के मार रहे हैं। तो कहा ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, रोजा नहीं रखा। तो कहा कल जो जुमा में आपने नीयत बताई थी वो याद नहीं हुई। तो कहा दिल में इरादे करने को नीयत कहते हैं। कहा कल जुमा में कह देते तो मेरा रोजा हो जाता। इसलिए मैं अरबी की दुआ नहीं बता रहा हूं, इसलिए कि अल्लाह हर जुबान जानता है। वो अल्लाह के बंदे जो रातों को जागते हैं, आम रातों का हाल अल्लाह का और बंदों का क्या है पता है? अगर हमारे दर पे, हम तो कच्ची लोग हैं ना, हमारी बिरादरियां उस इलाके की पलने वाली है जहां से सहाबा को गुजर हुआ, जहां औलिया अल्लाह सोए हैं, जहां बड़े बड़े मुहद्दिसीन सोए हैं, उस इलाके के हम रहवासी हैं। इस जमीन को बड़ी निस्बतें हैं। अल्लाह जल्ल शानहू हमें वो सिफात का सबूत देना नसीब फरमाए। हम तो वो लोग हैं, हमारे दर पे कोई बुजुर्ग चल के आ जाए ना कि चलो तुम्हें सुलह करनी ही पड़ेगी, हम कहते हैं वो हली ने आए वो आने धोरे वार वारो मोए दादा ठिकाने आऊं की पाछो वारियां, कहते हैं ना, इज्जत रखते हैं, किसी की बात का मान रखते हैं, सम्मान रखते हैं। वो लोग हैं। बताइए, हर सुबह हर शाम नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह सुबह होती है तो अल्लाह आवाज देता है, रात होती है तो अल्लाह आवाज देता है, रात खत्म होने से पहले अल्लाह आवाज देता है, ए मेरे वो बंदे जिन्होंने अपने आमाल नामे गुनाहों से भरवा रखे हैं, मुझसे सुलह कर लो ना। कौन आ रहा है हमारे पास? अल्लाह आ रहा है हमसे सुलह करने, हमें अपनी तरफ अपना बनाने के लिए अल्लाह बुलाता है। इतना बड़ा अल्लाह जिसने हमें इंसान बनाया, अगर वो कुछ और मखलूक बना देता हम क्या कर लेते? अगर हमसे अल्लाह ईमान ले लेता हम क्या करते? अगर हमें ये कुरान न मिला होता, हमें ये इस्लाम न मिला होता, हमारी ये भी बर्बाद हो जाती, वो भी बर्बाद हो जाती। अल्लाह की नेमतों में से एक वाकया आयत आया, अभी चंद वक्त पहले की बात है। हरम शरीफ में मदीना मुनव्वरा में एक बंदा बैठा हुआ था। एक दोस्त ने बात सुनाई, उसके हाथ में पानी का प्याला था और एक रुई का टुकड़ा था। बार बार उस पानी में भिगोता है, जुबान पे रखता है, पानी से भिगोता है, जुबान पे रखता है। पूछने वाले ने पूछा क्या बात है? तो कहा मेरी जुबान में थूक पैदा करने की जो सेंसर है वो ऑफ हो चुकी है, थूक पैदा नहीं हो रही जुबान में। अगर मैं थोड़ी देर पानी न लगाऊं तो जुबान तालू में चिपक जाएगी, मैं बात नहीं कर सकूंगा, अल्लाह का जिक्र नहीं कर सकूंगा। अल्लाह ने हमें जुबान दी है जिससे हम पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, नहीं बोलते तो तौबा के अल्फाज नहीं बोलते। वो अल्लाह इस रात में जब आम रातों में सुलह के लिए पुकारता है तो इस रात में क्या करता है पता है? यंज़िलुल्लाहु तबारक व तआला लिग़ुरूबि शम्सि इलस्समाइ दुनिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने सारी तजल्लियात अर्शे मौला से रहमत वाली तजल्ली को उस आसमान दुनिया पर जो हमसे करीब फरमा के ऐलानात करता है, मुस्तगफिरिन, दुनिया माफ करे न करे, एरिया रगड़ के थक जाओ सुलह न करे, पगड़ी डाल दो सुलह न करे। अरे इंसान की हैसियत है क्या? मनी का कतरा और मिट्टी का डला। वो खालिके कायनात ऐलान करे अला मिन मुस्तगफिरिन फागफिरु लह। अगर वो सुलह को आए और हम अपनी ही तकब्बुर वाली और मूछ वाली जिंदगी को अल्लाह के सामने अपना एतराफ करके न सुधारें, मुझसे और आपसे बड़ा तकब्बुर वाला और कौन होगा? जबकि वो ऐलान करे और क्या दुआ करे? अल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना इस्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम। सबसे बड़ी कामयाबी ये नहीं है दुनिया में कोई हमसे शिकायत करे, दो सख्त लफ्ज कह के उसे खामोश कर दें, कोई हमें गलती बताए हम उसे चुप कर दें। हम ऐसी अपनी जिंदगी बना लें कि हमारे सामने कोई हक मांग न सके
औलाद के सामने बाप ऐसा बन जाए कि औलाद अपना रोना गोद में आकर रो न सके, औलाद के सामने से जाबिर और जालिम बन जाए कि औलाद अपनी शफीक बाप से अपना दुखड़ा न सुना सके। ऐसे जब दिल सख्त हो जाए ना, ऐसे जब दिल सख्त हो जाए तो वो अल्लाह के सामने भी नहीं आते। दिलों को नरम करने का एक ही रास्ता है, तौबा, और ये इस्तिग़फ़ार की रात है। रात इनफरादी जागने की रात है, इनफरादी तौबा की रात है, अल्लाह के सामने सुलह करने की रात है। ये रात कैसी है कि रमजान आने से पहले पहले हम अपने रब से अपने मामलात क्लियर कर ले, ताकि हमारे कल्ब और जिगर में वो कुव्वत पैदा हो जाए जिससे रमजान की एक एक रहमत को, एक एक मग़फ़िरत को, एक एक अल्लाह की तरफ से आने वाले इनामात को हम अपने अंदर हासिल कर सके। ये रात इसलिए दी जाती है, हालांकि जिस दौर से हम गुजर रहे हैं ना, हम अपने बारे में सोचें, हमारे अंदर जान बाकी है या सिर्फ अपने पैसों की और ओहदे की शान बाकी है। हमारे औलादों के साथ ईमानियात में क्या हो रहा है हमें उसका एहसास नहीं, पता चला सिर्फ शान बाकी है, ईमान वाली जान सो गई है। उसे अगर जगाना है तो तौबा वाली रात है। मैं इस टॉपिक में नहीं जाता, ये अलग मौजू है, इंशाअल्लाह कोशिश करूंगा पीर के तफसीर में। इसलिए ये रात आ रही, इसे ज़हन में रखिएगा। मैं अभी इसको नहीं छेड़ता, लेकिन है दर्द दिल जो कहना चाहता हूं, अभी नहीं कह रहा कि अल्लाह ने रहमत वाली रात इसलिए दी, वो जानता है। जैसे हमने गुज़िश्ता जुमा में कहा था ना, जिस अल्लाह का रहमत वाला नबी जन्नत में भी ये ताना बर्दाश्त न करे कि कलमा पढ़ने वाला जहन्नम में जल रहा है, वो अल्लाह अर्श पे बैठे हुए जब अपने बंदों को जिन्हें ईमान दिया, कुरान दिया, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा नबी और रसूल और रहमत वाला फुरकान दिया, फिर भी अगर ये सब कुछ घर में होते हुए अगर अल्लाह के दर को, मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रहमत वाली सुन्नतों को छोड़ के दूर जाए तो अल्लाह को कितना गुस्सा आता होगा कि उसके न मानने वाले भी अजान सुन के दूर बैठे हों, उसका नाम न लेने वाले भी रात में अय्याशियां और फहाशियां देख रहे हों, और उसका नाम लेने वाला भी ऐसी भली रात में, ऐसी रहमत वाली रात में अल्लाह खुद आ जाए, वो पुकारे, वो सदा लगाए, वो रहमत का ऐलान करे, वो सुलह करने के लिए ऐलानात करे, और ये कहे कि नहीं तू काहे कौन, मैं नहीं करता सुलह। अगर ये अल्लाह के सामने भी सर निगो होने के लिए तैयार ना हो, मेरे अजीज हो, उससे बड़ी बदकिस्मती क्या होगी। गवा दी जो हमने दौलत असलाफ से पाई थी, वो असलाफ सहाबाए किराम की सिफत जिनकी ईमान की गवाही कुरान दे, जिनके मकाम की गवाही, जिनके मरातिब की गवाही मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान दे, वबिलअस्हारिहुम यस्तगफिरून, वो तो रातों को उठकर अल्लाह के सामने रोए गिड़गिड़ाएं, जिनकी शान कुरान बयान करे, मोहम्मद मुस्तफ़ा का फरमान बयान करे, वो तो इस्तिग़फ़ार और तौबा करे। मैं और आप नाफरमान होकर भी आजिज़ी न करें। ये रात इस्तिग़फ़ार की, तौबा की, आजिज़ी की रात है, जहन्नम से छुटकारा मांगने की रात है। जिस जुबान में मांगिए, अल्लाह सब जुबानें जानता है। थोड़ी देर आओ तो सही, अल्लाह से बात तो करके देखो। हकीकत में अल्लाह की मोहब्बत वो है, अगर आप अल्लाह से दोस्ती करेंगे ना, फिर आप तन्हा बैठे हों और किसी दुखिया परिंदे को देखोगे ना, तो आपके दिल से एक दर्द उठेगा, आंख से आंसू आएंगे। अगर आपको गुनाह का इकरार करना नहीं आता, आंख से आंसू नहीं आता, दिल नहीं तड़पता, फिर मेरे अजीजों, इसका इलाज बकौल अल्लामा नवी रहमतुल्लाह अलैह, बकौल अल्लामा अनवर शाह कश्मीर रहमतुल्लाह अलैह, बकौल शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह, बकौल इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह, सिवाय सच्ची पक्की तौबा के इसका कोई इलाज नहीं। तो रात इबादत की है, दिन में रोजा मुस्तहब है। इस मुस्तहब रोजे के बारे में दो बातें समझना जरूरी है। रोजा रखने की आदमी कोशिश करे, रोजा रखे, और अगर कोई नहीं रखता तो न रखने वाले पर ताना न दे। ये इसका हुक्म है। एक शरीयत के अंदर मकाम होता है,
नफिल का, सुन्नत का, वाजिब का, फर्ज का, शायर इस्लाम का ये मरातिब हैं। रोजा मुस्ताहब है, अगर कोई रखता है बेहतर है, मुबारक है, ये रोजा रखना चाहिए, इसकी तरकीबात हदीसों में साबित है। वो लोग भी गलत है जो ये कहते हैं इसकी कोई हकीकत नहीं, वो लोग भी गलत है जो न रखने वालों को ताना देते हैं, वो भी गलत है जो खुद रखते हैं दूसरों पे फख्र करते हैं। ये शरीयत का दायरा है जिसे उलमा की सोबत में रहकर समझा जा सकता है। इसलिए ये पीर की जो शब होगी, इतवार की शाम, पीर की रात, ये शबे बारात, अपने आप को गुनाह वाली जिंदगी से आजाद कराना है, औलिया अल्लाह वाली, अल्लाह के वलियों वाली, दोस्तों वाली जिंदगी बनाना है। उसके लिए हम कोशिश करें कि ये रात हमसे गुजर न जाए, गफलत में कहीं चली न जाए। इसे तौबा के साथ, इस्तिग़फ़ार के साथ खुद भी वसूल करें, अपने घरों में शरीक हयात जो है उन्हीं के अंदर भी बैठकर दुआएं करें, घर में चंद इबादत करें, चंद रकात नफिल की घर में भी पढ़ें, ताकि घर वालों को भी एहसास हो। एक बाप, मौलाना साहब, मौलाना अब्दुल मुक्सिद दुआ करेंगे, कबूल हुई नहीं हुई, क्या गारंटी आपके पास? हजरत जी दुआ करेंगे, क्या गारंटी? लेकिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने गारंटी दी है, औलाद के लिए माँ की दुआ और बाप की दुआ रद्द नहीं होती, 100% कबूल होती है। अगर ऐसी भली रात में एक बाप 2 रकात पढ़ के औलाद साथ में बैठी है, शरीक हयात बैठी है और हाथ उठाए, इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह, मेरे आका के फरमान का सच्चा ये यकीन है कि आपके घर की हुई दुआ 100% कबूल होगी, आपके घरों की तकदीर भी बदलेगी, उम्मत की तकदीर भी बदलेगी। बच्चों की मां से कहिए, आप उसके साथ बैठिए, उससे कहिए, वो सारा दिन आपके लिए सुबह से शाम तक तपती है, तकलीफें उठाती है, यूं कि अलग अलग मेवे और अलग अलग वैरायटी से आप नहीं बनाते, वो बेचारी तपती है, उसे कहिए हाथ उठाए, वो उन बच्चों की मां दुआ करेगी। उसके अंदर अल्लाह ने शफकत और नरमी रखी है। अल्लाह ने अपनी रहमत की मिसाल बाप से नहीं दी, मां से दी है कि 70 माओं से ज्यादा शफकत वाला है। जब वो बच्चों की मां हाथ उठाए, आप भी हाथ उठाइए, दुआ कीजिए, 100% इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह आपकी तकदीर भी बदलेगी, आपकी तौबा भी कबूल होगी, आपके औलाद की तकदीर भी बदलेगी। अल्लाह ताला अमल करना नसीब फरमाए। मैं थका हुआ तो आया था, 11:15 बजे उतरा हूं, ट्रेन से थक के आया हूं, लेकिन फिर भी आप हजरात की हमदर्दी है इसलिए बैठ गया हूं। अल्लाह ताला पहले मुझे फिर आप हजरात को अमल करना नसीब फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल। दीन की बात फैलाना सदक़े जारिया है। सवाब की नीयत से वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। जज़ाकल्लाह।